آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات پر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کونسل کے 5 ممبران میں سے 4-1 کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 روز میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر شواہد کی روشنی میں تفصیلی شوکاز جاری۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے 14 دن میں جواب طلب۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس 4-1 کی اکثریت سے جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس نعیم افغان نے شوکاز جاری کرنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایت کنندگان کو سنا گیا، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے 2 اعتراضات وضاحت ہونے پر واپس لیے گئے۔ اجلاس میں صرف کونسل ارکان کی جانب سے مشاورت کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے، جس کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی رقم نیشنل کرائم ایجنسی نہیں بلکہ ملک ریاض کے فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایت پر پاکستان منتقل ہوئی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی کا تنازع مشرق بینک نیشنل کرائم ایجنسی کا خط سامنے لے آیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق نئے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ سپریم کورٹ میں جواب جمع۔ مشرق بینک کی جانب سے سامنے لائے گئے نیشنل کرائم ایجنسی کے خط میں کہا گیا ہے کہ ملک ریاض کی فیملی ممبر مبشرہ علی ملک کا اکاؤنٹ برطانوی ڈسٹرکٹ جج نے ڈی فریز کر دیا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے تصدیق کی کہ ڈسٹرکٹ جج نے 14 دسمبر 2018 کے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے 22 نومبر 2019 کو مشرق بینک کو خط لکھ کر حقائق سے آگاہ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود اپنی رضامندی سے پاکستان بھجوائی۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دستاویزات برطانوی قوانین کے مطابق ہیں اور ان پر کارروائی کا حق بھی برطانیہ کے متعلقہ عدالتوں کے خصوصی دائرہ کار میں آتا ہے۔ مشرق بینک کے جواب سے یہ پہلو سامنے آیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی تھی بلکہ اکاؤنٹ ہولڈر کا اختیار تھا۔ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن 460 ارب ادائیگی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن دوپہر 12 بجے فیصلہ سنائے گا۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پرانے سیاستدان سیاست چھوڑ دیں، بزرگ سیاستدان اپنے گھر یا مدرسے میں بیٹھیں۔ نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ پرانے سیاستدانوں سے جان چھڑوائیں، جس طرح یہ سیاست کر رہے ہیں مسائل میں اضافہ ہوگا۔ چترال میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18 ماہ کی حکومت نے عوامی مسائل کی بجائے ذاتی دشمنی پر توجہ دی۔ پی ٹی آئی دور میں ٹک ٹاکرز اور میاں صاحب کے دور میں اشرافیہ کی حکومت بنتی ہے۔ شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دیں۔ یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا۔ یہ تو ان کا مطالبہ ہے۔ میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا۔ ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے، عزت کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے۔ وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے۔
जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके आवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सैयद मुबीन आलम और दीगर ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियां इम्तियाज भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। आपकी शमूलियत से अवाम को मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन ने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने चेयरमैन पीटीआई समेत 41 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। बुशरा बीबी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 6 दीगर रहनुमाओं के नाम लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश भी कर दी गई है। परवेज खटक के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने की भी सिफारिश की गई है। इस्लामाबाद से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 41 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। परवेज खटक का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। इजलास में ECL से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। नैब के 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश की गई, जिनमें परवेज इलाही, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल हैं। इजलास में 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने और अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम लिस्ट से निकालने की सिफारिश की गई। इसके अलावा नजरसानी के लिए पेश अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई है। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, इसका मतन पब्लिक करने का है। दरखास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी, जबकि साइफर केस में फर्द जुर्म के मामले पर वकील के इल्तिवा की दरखास्त समाअत मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR में इल्जाम है कि चेयरमैन पीटीआई ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा और बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत को नुकसान पहुँचाया। केस में असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुलजिम से गवाह बना दिया गया है। साइफर डिक्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं रहता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजिम ने दिखाया, जिस पर सलमान सफ्दर ने बताया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। वकील सलमान सफ्दर ने कहा जो दिफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुँचाया। साइफर को डी क्लासीफाई कानून के मुताबिक किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, मतन पब्लिक करने का है। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साइफर दफ्तर खारजा के पास है, तो फिर मुलजिम से रिकवर क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ने रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान की इल्तवा की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, फैसले की रोशनी में दरखास्त में तरमीम करना चाहता हूँ। अदालत ने वकील की इस्तदा मंसूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सानह 9 मई में गिरफ्तार 711 मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमात की तफ्तीश और ट्रायल में बेगुनाह अफराद को शामिल नहीं किया गया। मुकदमात की तफ्तीश और ट्रायल में बेगुनाह अफराद को शामिल नहीं किया गया। मई के मुकदमात में गिरफ्तार 711 मुल्जिमान डिस्चार्ज। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमात से खारिज अफराद का रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जना हाउस हमला केस में 31 मुल्जिमान गिरफ्तारी के बाद डिस्चार्ज हुए। 30 मुल्जिमों को शनाख्त परेड के बाद जबकि एक मुल्जिम को पहले डिस्चार्ज किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दी के 14 मुकदमात से 145 मुल्जिमान डिस्चार्ज हुए। दहशतगर्दी मुकदमात में 129 अफराद को शनाख्त परेड के बाद छोड़ा गया। सानिया 9 मई के
समेत दीगर 49 मुकदमात से 566 मुल्जिमान को भी फारिग कर दिया गया है। 306 मुल्जिमों को शनाख्त परेड के बाद जबकि 260 अफराद को पहले रिहा किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि साने 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और ट्रायल में बेगुनाह अफराद को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि मुशर्रफ फांसी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार ना होने पर बरकरार नहीं रह सकता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फांसी दिए जाने से मुतल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले पर दायर केस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो तो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार न होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया वो हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि क्या विफाक ने भी दायरा इख्तियार पर एतराज नहीं किया। इस पर हामिद खान ने कहा कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब एक सफ़े पर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालती माविन ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी एक सफ़े पर थे। हामिद खान ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अदालती माविन भी एक सफ़े पर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ये सेम पेज क्या कोई आईनी दस्तावेज है। इस सवाल पर अदालत में कहकहे लग गए। अदालत ने कहा कि फरीकैन अगर चाहे तो तहरीरी मारूजात जमा करा सकते हैं। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने वॉल्टन रोड और ADA नाले की रीमॉडलिंग, कैवलरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट तक वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर पंजाब ने कहा कि सेंटर पॉइंट से वॉल्टन रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जारी 3 तरक्याती मनसूबों का दौरा। वाल्टर रोड पर सीवरेज के पानी की निकासी पर इत्मीनान का इजहार। तामीराती सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला का दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने के वाक़े का फौरी नोटिस। इंतजामिया और पुलिस ने मोहसिन नकवी की मौजूदगी में ही दुकानें खुलवाई। वज़ीर आला ने कैवलरी अंडरपास पर असफाल्ट के काम को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वाल्टर रोड पर 6 मुकामात पर काम शुरू किया जा रहा है, जिस पर 9 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। चील चौक पर फ्लाईओवर बनाने से ट्रैफिक की रवानी में आसानी होगी। सेंटर पॉइंट से वाटर रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। कैवलरी अंडरपास अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होने की उम्मीद है। घोड़ा चौक है वो 7 दिसंबर को इंशाल्लाह खुल जाएगा। जो हमारा कैवलरी वाला अंडरपास है वो इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 दिन के अंदर तकरीबन अभी हम वहाँ से भी होके आ रहे हैं, आखिरी स्टेजेस पे है, 3-4 दिन में वो भी खुल जाएगा। उसके बाद जिस तरह आपने बोला SL3 और दूसरे नंबर पर आपका बंद रोड है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी दिन रात काम हो रहा है और हमारी दोनों की डेडलाइंस जनवरी के महीने की हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि गुजरांवाला में सब्जी मंडी, ग्वाला कॉलोनी और कब्रिस्तान का मसला हल कर दिया है। एक्सप्रेस वे और बर्न यूनिट जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा।